Good morning, students. Here there is a Pradeep sir from the JK classes. Regarding to the paper one that is uses in net set, because of this lockdown, we have stopped our lectures. But right now we are starting with the paper one lectures from the some of the online sessions. So let's see from the today onward we have to some of the topic we have to cover by the online. So I'm requesting all the students, please listen. Whatever your doubts are there, please post in the WhatsApp group. So I'm not wasting a time. So let's see, we are starting with the paper one lecture, first paper one lecture, that is from the first topic, that is binary numbers. Some of the lectures I already covered in the classroom, that is from the paper one, that is binary to up till data interpretation. But some of the new students who are now saved this lecture, so I'm from the all the students I'm saying that please refer this all these lectures, and whatever the doubts are there, please ask in the group. Yeah. So let's see regarding to the this net exam. We already known about regarding paper one, that is of 50 question, that is of 100 marks. This is already we have refer in the classes. And again regarding to the paper 2, there is of questions are 100 and this is of 200 marks. But there is a minimum passing of this two papers, that is here there is a paper 1 that is of 40 marks, and here there is a paper 2 of 50 marks, that is 100 questions. If 100 into 2 is multiplied is there, that is 200. Here there is a 50%, there is a aggregate passing is there. But our aim is to achieve that the goal of that is cut off. हर साल देखिए कॉमर्स की बात करें या अदर सब्जेक्ट्स की बात करें कि कट ऑफ के बेसिस पे ही पास हो सकते हैं, तो इसीलिए हमें कट ऑफ पे सबसे ज्यादा फोकस करना है. तो कट ऑफ के लिए बेसिकली अपने को ये देखना है कि हर साल का कट ऑफ देखो 60, कभी 64, कभी 62, कभी देखिए 58 पे लग रहा है. तो इसीलिए हमें एक मिनिमम क्राइटेरिया फॉलो करना चाहिए, दैट इज पेपर वन में अगर हमें अच्छा स्कोर करना है तो मिनिमम 70 प्लस मार्क्स आने चाहिए. और पेपर 2 की बात करें तो मिनिमम 120 से लेकर 130 के रेंज में अगर आपके मार्क्स आते हैं तो इट्स कमिंग अराउंड दैट इज 200 मार्क्स. इफ आई एम कैलकुलेटिंग 200 आउट ऑफ this 300, it is around 66%, and this 66% is more than enough for the passing the net exam with this cutoff. This I already discussed in the lectures, past lectures. So this I'm only there is a brief view. So not wasting our time, I am starting with the paper one, that is first topic, that is binary number. बाइनरी नंबर ये हमने टॉपिक ऑलरेडी क्लास में पढ़ा था. बाइनरी नंबर की बात करें तो यहाँ पर देखिए पेपर वन में नेट और सेट के बोथ द पेपर्स में कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं. मतलब ये टॉपिक अराउंड 2 to 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है. तो लेट्स सी स्टार्टिंग विद द बाइनरी नंबर. बाइनरी नंबर बेसिकली यूज इन अ कोडिंग पर्पस इन अ कंप्यूटर लैंग्वेज, दैट इज इफ वी आस्क सम क्वेश्चंस, तो देयर आर क्वेश्चंस ऑफ 2 टाइप्स, दैट इज यस और नो. तो yes is coded as 1 and no is coded as 0. So that's why, so starting with the first introduction of binary number. बाय का मतलब होता है 2. बाय मतलब जहां पर दो चीजों की बात हो. तो बाइनरी नंबर में देयर इज अ फिक्स्ड इज देयर. बाइनरी का बेस हमेशा फिक्स होता है 2. और इसका रिप्रेजेंटेशन की बात करें, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय 1 and 0. इसका रिप्रेजेंटेशन कहाँ से होता है? 1 और 0 से होता है. यस फॉर 1 एंड नो फॉर 0. यहाँ पर देखिए 3 टाइप के बेसिकली बाइनरी एग्जाम्स में पूछे जाता है. फर्स्ट टॉपिक की बात करें तो दैट इज कॉल्ड एज डेसिमल टू बाइनरी. नेक्स्ट टॉपिक की बात करें दैट इज कन्वर्जन ऑफ बाइनरी टू डेसिमल. थर्ड टॉपिक की बात करें दैट इज कॉल्ड एज
नेगेटिव बाइनरी। तो ये देखिए, ये दिस आर द थ्री बेसिकली बाइनरी, बेसिकली आस्किंग द नेट एंड सेट बोथ द एग्जाम्स, और इसका हमेशा रिप्रेजेंटेशन 1 और 0 से होता है। यस, अभी हम इसके ब्रीफ व्यू की तरफ आते हैं कि हाउ द क्वेश्चंस ऑफ डेसिमल टू बाइनरी गेट सॉल्व, बाइनरी टू डेसिमल सॉल्व, और नेगेटिव टाइप ऑफ बाइनरी हाउ इट कैन बी सॉल्व बाय द वेरियस काइंड्स ऑफ मेथड्स आर देयर। सो आई एम स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज डेसिमल टू बाइनरी। सो पहले टॉपिक की बात करते हैं, दैट इज डेसिमल टू बाइनरी। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन किस टाइप में पूछे जाते हैं। बेसिकली पास्ट ईयर के पेपर्स में ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए ऑलरेडी, 17 बेस 10, दैट इज 51 बेस 10, दैट इज अगेन देयर इज 88 बेस 10। भाई देखिए बेस में 10 लिखा है, इसका मतलब 10 नहीं है, ये बेसिकली बाइनरी का रिप्रेजेंटेशन है। That is for coding purpose, that is 1 for a yes and 0 for no. So let's see, we are starting with the first this question. This is already asked in 2016 paper. So how to solve this kind of question? So first there is a 70. इसका हमें पता है कि बाइनरी का बेस फिक्स होता है, that is 2. तो हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना है, सिर्फ जस्ट बाइनरी को डिवाइड बाय 2 करना है एंड वी हैव टू कैलकुलेट द रिमाइंडर्स। तो देखिए मैं कैसे करता हूँ, डिवाइड बाय 2 मतलब ऐसा लिखा जाता है, 2 8 हाउ मच 16 होता है, और देखा जाए तो इसे कट करें तो 16 हो गया, पर बचा है अभी भी रिमाइंडर में देखिए 1। आगे आके मैं अगेन डिवाइड करता हूँ, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ऐसे देखें तो हाउ मच इट इज, 2 4 जा 8। तो देखिए यहाँ पर रिमाइंडर कुछ नहीं बच रहा है, 0। उसके बाद देखें 2 2 जा 4, तो देखो यहाँ पर भी रिमाइंडर 0 बचा, और लास्ट में देखो 2 1 जा 2। अभी देखिए ये सॉल्व करने पे हमें कुछ तो आंसर मिल रहा है, और इसका आंसर लिखने का तरीका देखिए, ऑलवेज फ्रॉम बॉटम टू टॉप। क्या कैसे लिखा जाता है, बॉटम से लेके टॉप की तरफ। अभी देखिए 17 का अगर मुझे आंसर लिखना है तो बॉटम से टॉप की तरफ क्या होगा, 1 0 0 1 और बेस 2। वाई, बिकॉज ये कैसे डिविजिबल है, 2 से। यस, सभी को समझ में आया क्या मैंने किया, इसे मैंने डिवाइड बाय 2 करके रिमाइंडर कैलकुलेट किया। 2 8 जा 16, रिमाइंडर 1, 2 4 जा 8, रिमाइंडर इज 0, 2 2 जा 4, रिमाइंडर इज 0, 2 1 जा 2 एंड देयर इज अ रिमाइंडर इज 0। यस, इसी तरीके से ये पास्ट ईयर के पेपर में आया क्वेश्चन। अभी जैसे कि मैं सेकंड वाला क्वेश्चन लेता हूँ, दैट इज 51 बेस 10। तो अभी देखिए 2 2 जा क्या होता है, 4, तो देखो रिमेनिंग 1 बचता है, मतलब 11 हो गया, एंड दैट इज 2 5 जा 10। बट देखिए अभी भी रिमाइंडर कितना बचा है, 1। अगेन 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, देखो वापिस से रिमाइंडर 1 बचा। बट यहाँ पर देखो 2 के टेबल में 2 6 जा 1, तो दैट इज रिमाइंडर इज 0, 2 3 जा, अगेन 2 1 जा 2, और रिमाइंडर देखिए। यस, तो देखा 51 बेस 10 की बात करें तो उसका आंसर क्या मिल रहा है हमें, बॉटम से बेस की तरफ 1 1 कितना मिल रहा, 1 1 0 0 1 1, और बेस में कितना 2। वाई, बिकॉज ये कैसे फुल्ली डिविजिबल था, डिवाइड बाय 2 से। तो देखिए ऐसे टाइप के क्वेश्चन बेसिकली बाइनरी में पूछा जाता है, डेसिमल टू बाइनरी, जहां पर आपको बेस 10 लिखा है, डिवाइड बाय 2 करके रिमाइंडर निकालना है, ठीक है। और अपने क्लासेस के नोट्स में बहुत सारे एक्सरसाइज में बहुत सारे इस पर मैंने क्वेश्चंस ऑलरेडी दे के रखे हुए हैं। तो जस्ट फॉर अ इंट्रोडक्शन एंड जस्ट फॉर हाउ टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, तो प्लीज रेफर दिस एंड सॉल्व द एक्सरसाइजेस, एंड इज देयर एनी डाउट्स आर देयर तो प्लीज पोस्ट इट इन द व्हाट्सएप ग्रुप। क्या करना है, कुछ नहीं, डिवाइड बाय 2 करके रिमाइंडर निकालना। यस, आगे बढ़े। या नेक्स्ट टाइप आता है इसका, दैट इज कॉल्ड एज बाइनरी टू डेसिमल। और देखिए अभी हमने 17 को सॉल्व किया, तो 17 का हमें कुछ तो आंसर मिला। अभी इसी के बेसिस पे आपको आगे वाला सॉल्व करना है कि अभी हमें एग्जाम में देते समय देखिए, जैसे डेसिमल टू बाइनरी में बात करें 17 बेस
10 का आंसर अभी हमने निकाला 1,001 बेस में 2। बट अभी एग्जाम में देखिए देते समय दे आर गिविंग दिस एंड दे आर आस्किंग व्हाट इज द बाइनरी टू डेसिमल। तो दैट्स व्हाई देयर इज अ सेकंड पार्ट दैट इज बाइनरी टू डेसिमल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके आंखों के सामने जितने नंबर आपको देखे रखे पहले वो काउंट कर लीजिए वो कितना है। दैट इज 1 2 3 4 5। अभी देखिए आपको क्वेश्चन में 5 कभी 6 कभी 7 कभी 8 भी दिया हो सकता है। अभी मेरे सामने 5 दिया है तो ऑलवेज ये बात याद में रखें कि बाइनरी टू डेसिमल करना है तो ऑलवेज 5 - 1। अभी यहाँ पर 5 नंबर दिए इसलिए 5 में से मैं ऑलवेज वी हैव टू सबट्रैक्ट 1। 7 होते हैं तो 7 में से 1 जाता तो दैट इज 6 बचता। तो वैसे ही यहाँ पर रिमाइंडर देखो माइनस करें तो कितना बच रहा है 4। और वी हैव टू गो इन अ डिसेंडिंग मैनर। डिसेंडिंग मतलब क्या होता है बड़े से लेकर छोटे की तरफ। और हमें पता है कि बाइनरी का बेस हमेशा दैट इज फिक्स होता है दैट इज 2। तो हाउ टू स्टार्ट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। तो देखो 2⁴ इंटू फर्स्ट नंबर प्लस ये पहला। उसके बाद 4 के नीचे डिसेंडिंग में देखे तो 2⁵ इंटू सेकेंड नंबर। नेक्स्ट 3 के नीचे 2⁵2 इंटू थर्ड नंबर, 2⁵1 इंटू फोर्थ नंबर एंड लास्ट 2⁵0 इंटू लास्ट नंबर। अब 2⁴ की बात करें तो ये कैसे निकालते हैं ये हमने स्कूल में पढ़ा था। 2 कितनी बार 4 बार। तो देखिए 2 2 4 4 2 8 8 2 16। तो 16 इंटू 1 इज 2⁵3 की बात करें तो देखो 2 2 4 4 2 8 आता है बट 8 इंटू 0 इज 0। दिस इज ऑल्सो 0, दिस इज ऑल्सो 0। बट हमने स्कूल में कहा तो पढ़ा था एनी नंबर रेज टू 0 इज बिकम हाउ मच 1। तो दैट्स व्हाई 1 इंटू 1 बिकम, और देखिए आ गया 16 + 1 70। ये अभी हमने सॉल्व किया था। यस तो हमने इसमें क्या सीखा। हमें क्वेश्चन में देते समय दे आर गिविंग बाइनरी और हमेशा उसे टोटल मारे वो कितना है और हमेशा 1 सबट्रैक्ट करें। तो इससे आप डिसेंडिंग ऑर्डर में वी हैव टू मल्टीप्लाई और ऐड करने पे आपको आंसर मिल जाएगा। सेम वे लाइक 51 और 27 जो भी आपके एक्सरसाइज में दे के रखे क्वेश्चन इसको इस तरीके से सॉल्व कीजिए तो जिससे क्या आ जाएगा आपको नेक्स्ट टॉपिक दैट इज बाइनरी टू डेसिमल समझ में। यस आगे बढ़े। अभी इसका थर्ड फेज आता है दैट इज कॉल्ड एज नेगेटिव बाइनरी। तो नेगेटिव बाइनरी में बेसिकली क्या दिया होगा। अब तक हमने इतने क्वेश्चन सॉल्व किए पर एक भी जगह पे कहां पर भी -2 -1 ऐसे रिमाइंडर कभी बचा नहीं। सारे नंबर के नंबर पॉजिटिव नंबर ही बचे। तो जैसे कि अगर बात करें अभी पास्ट ईयर के पेपर में ऐसे ऑलरेडी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं 19 बेस 10 दैट इज -20 बेस 10। तो आप पास्ट ईयर के पेपर रेफर करिए उसमें ये आपको क्वेश्चन मिलेंगे ऑलरेडी आ चुके हैं। ऐसे क्वेश्चन देके रखे। और जैसे कि अगर 19 की बात करें हमें बाइनरी तो सॉल्व करने आता है। हम बेसिकली क्या करेंगे 19 को डिवाइड बाय 2 करेंगे और उसका आंसर निकालना स्टार्ट करेंगे। बट यहाँ पर नेगेटिव नंबर देके रखा है तो हमें ये याद रखना है कि नेगेटिव बाइनरी इट कांट बी सॉल्व। तो नेगेटिव बाइनरी सॉल्व ही नहीं हो सकता तो हम कैसे क्या इसका बाइनरी कैलकुलेट करें। तो इसका हमेशा आंसर आपको 4 फॉर्म में दिया होता है A B C D के फॉर्म में। यहाँ पर देखिए कुछ ना कुछ आंसर्स दिए रहेंगे बट हमेशा इसका आंसर कांट डिटरमाइन और नन ही होता है। तो इसीलिए ये याद रखें कि नेगेटिव बाइनरी इट कांट बी सॉल्व। तो दैट्स व्हाई ऑलवेज जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए नेट और सेट के एग्जाम में सीधा सीधा आंख बंद करके आपको क्या करना है कांट डिटरमाइन या नन ऑफ दिस इस टाइप पे क्लिक करना है सिंपली। यस तो समझ में आया। हमने पहले क्या सीखा दैट इज डेसिमल टू बाइनरी जहां पर हमें एक नंबर दिया जाता है उसके बेस में 10 लिखा जाता है। तो इफ वी डिवाइडेड इट बाय 2 एंड गेट द रिमाइंडर्स and we have to write from bottom to top that is called as decimal to binary. Second we have seen that is binary to decimal. Here there are 1010 ऐसे numbers दिए होते हैं। तो पहले ये देखें कि numbers कितने दिए गए और उसे total मारे and always be subtracted 1. And there is a third that is called as negative binary. In that ऐसे negative forms में binary दिया होगा तो उसे सीधा सीधा क्या करें
उसका आंसर हमेशा कांट डिटरमाइन या नन ऑफ दिस ही आता है, इसके अलावा उसके आंसर्स कुछ नहीं होते। तो थैंक यू सो मच, दिस इज माय फर्स्ट सेशन, थैंक यू।